Good morning dear student. Today I am going to deliver our next topic is a percentage composition. So what is a percentage composition? So is a one way of representing concentration of one element. This condition is called a percentage composition. It means to say यहाँ पे क्या है particular single elements का concentration. It means to say mass percentage identify किया जाता है. Okay, so ratio in which its constituents are present in a given compound. It means to say particular compounds में how many amounts of presents in a single elements. Okay, it means to say single elements जो है वो कितने amounts में presents है. According to this percentage composition, you can identify one component's concentration. So let's see how it's possible. So their formula is mass percentage of elements in a compound is equal mass of elements in a 1 mole of compound. It means to say particular जिस elements की अपन को क्या करना है mass percentage निकालनी है, mass elements numbers of mass निकालने हैं, तो वो होंगे हमारे mass of element in a 1 mole of compound and upon molar mass of compound. It means to say total compounds के molar mass and multiply 100. Okay, so let's see. Their example is here presents methane. So molar mass of methane is क्या हुआ 12 plus 4. It means to say 12 बोले तो क्या होगा यहाँ पे कार्बन का जो मीन्स क्या है एटॉमिक नंबर्स जो है एटॉमिक मास जो है वो होता है 12. कार्बन की एटॉमिक मास क्या हुई 12 एंड हाइड्रोजन की क्या हुई 1. ओके, सो यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 12, सो 12 एंड 1 है, सो 1 मल्टीप्लाई 4 इट मीन्स टू से 4. इट मीन्स टू से 12 प्लस 4 इज इक्वल 16. So our total molecular mass, it means to say total जो molecular mass है यहाँ पे molecular mass of compound का जो molecular mass है वो है हमारा 60 ग्राम. ओके, सो हमने तो टोटल निकाल लिया, बट सिंगल एलिमेंट्स के अपन को मास परसेंटेज निकालने हैं. ओके, सो सिंगल एलिमेंट्स में अपन पहले पे लेते हैं कार्बन. सो मास ऑफ कार्बन, मास परसेंट ऑफ कार्बन इज इक्वल 12. It means to say mass of elements in 1 mole of compound. It means to say single elements का क्या है mass of elements. Okay, ये क्या है mass of elements किनके हैं कार्बन्स के, because हम पहले कार्बन का परसेंटेज निकाल रहे हैं. So single elements का mass परसेंटेज कितना है हमारा, so single elements का mass कितना है हमारा 12 upon 16. It means to say total molar mass जो है वो हमारा है 16 ग्राम. Okay, and multiply 100. Answer is 75%. Okay, then our next is the mass percent of hydrogen. अब हाइड्रोजन की अपन को मास परसेंटेज निकालनी है, so we will put their value हाइड्रोजन 4 upon 16. It means to say molar mass of total molar mass of compound जो है वो 16, then multiply 100. So our answer is 25%. Okay, so in this condition यहाँ पे क्या है हमने single elements के concentration, it means to say is one way of representing concentration in single elements. Okay, then our next example is H2O water molecule. So molar mass of water is 2 plus 16. It means to say water जो है वो 2 amounts में presents है and oxygen जो होता है उनका क्या होता है particular one elements का क्या है हमारा 16. ऑक्सीजन का क्या होता है मास 16. सो टोटल जो हुए हमारे क्या 80. सो हमने फॉर्मूला पे फिर ये पुट किया, हम सिंगल पहले हाइड्रोजन का निकालेंगे. सो मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 1. 2 इट मींस टू से हाइड्रोजन एलिमेंट्स की मास एंड अपॉन 18 इट मींस टू से टोटल वाटर मॉलिक्यूल्स के मास. ओके, सो मोलर मास then multiply 100. So our value is 11.11%. Okay, then our next is oxygen. Mass percent of oxygen is equal 16. It means to say oxygen single की mass जो है वो क्या है 16 upon total mass compound mass 80 multiply 100. So our value is 88.88%. So I hope clear all of you percentage composition. So now we
रिप्रेजेंटिंग करता है, सो वो होते हैं हमारे एम्पिरिकल फॉर्मूला। एंड जो क्या है नंबर्स ऑफ एटम्स, इट मींस टू से पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स में नंबर्स ऑफ एटम्स, हाउ मेनी प्रेजेंट्स इन द नंबर्स ऑफ एटम्स, सो वो अपन का रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, सो यू हैव ऑलरेडी नोन देयर एग्जांपल इज ग्लूकोज। ग्लूकोज में अपन ने क्या है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों देखे थे। सो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देयर वैल्यू इज C6H12O6। ओके, ये था हमारा ग्लूकोज। एंड अकॉर्डिंग टू देयर एम्पिरिकल फॉर्मूला ये क्या थे CH2O, इट मींस टू से 1:2:1 में प्रेजेंट्स थे। ओके, सो एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो रेशियोज को रिप्रेजेंट करता है एंड मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है वो क्या करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ एंड नंबर्स ऑफ एटम्स, इट मींस टू से पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स में नंबर्स ऑफ एटम्स कितने होंगे। ओके, सो लेट्स सी आवर डिटरमाइनिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, आवर क्वेश्चन इज डिटरमाइनिंग द एम्पिरिकल फॉर्मूलाज ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन व्हिच हैज 69.9% iron, 30.1% dioxygen by mass and molar mass is 79.8 gram. Okay, so according to four step we solve in this equation. Okay, so let's start. Our first point is convert mass percent to gram. It means to say क्या है हमको मास परसेंटेज को ग्राम पे कन्वर्ट करनी है। सो अवर वैल्यू आयरन की वैल्यू क्या है 69.9%। परसेंट की जब बात आती है सो अपन क्या करते हैं उसको 100 से डिवाइड करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू 100 हमारा क्या होगा वैल्यू इज 69.9 एंड अकॉर्डिंग टू 100 हमारा आयरन का वैल्यू जो है वो 30.1% है। इट मींस टू से 100 की रेशियोज को लेके चलनी है कि 100 में हमारा जो सॉल्यूशन है वो कितने परसेंट प्रेजेंट है 69.9% एंड अकॉर्डिंग टू आयरन जो 100 के अकॉर्डिंग उनकी रेशियो कितनी है 30.1%। ओके, देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज कन्वर्ट्स इनटू नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच एलिमेंट। इट मींस टू से पर्टिकुलर एलिमेंट्स के क्या है हमको उनके ईच एलिमेंट्स के क्या करने हैं पर्टिकुलर एलिमेंट्स के हमको क्या है उनको मोल पे कन्वर्ट करने हैं। सो लेट्स सी हाउ टू कन्वर्ट इन अ मोल कंडीशन। सी मोल ऑफ आयरन, सो मोल ऑफ आयरन इज इक्वल्स होगा गिवन मास। इट मींस टू से हमारा गिवन मास कितना है यहाँ पे 69.9% एंड आवर मोलर मास इट मींस टू से यहाँ पे क्या है इनके जो मास है इट मींस टू से Fe आयरन के मास जो है वो क्या है 55.8। ओके, सो यहाँ पे क्या है अपन ने इसको डिवाइड किए। सो आवर वैल्यू इज 1.25। ओके, देन आवर नेक्स्ट इज ऑक्सीजन, मोल ऑफ ऑक्सीजन। सो सेम प्रोसेस इसमें भी फॉलो होंगी। गिवन वैल्यू जो है 30.1% एंड अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन मास 16, सो 30.1 divided 16, so our value is 1.88. Okay, 1.88. Okay, so converts हो गए हमारे क्या mass of each elements. Okay, now the next point is divides mole value by the smallest number. It means to say इसमें आपको कौन सी जो है वो smallest numbers दिख रही है। So यहाँ पे हमारा 1.25 है वो सबसे smallest number है। So इसको अपन को क्या करना है डिवाइड करना है इनकी वैल्यू से। इट मींस टू से टोटल जो वैल्यूज हमारे आए हैं मोल्स ऑफ आयरन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन उनसे हमको डिवाइड करना है इनके जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है। सो स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 1.25। सो इस 1.25 से हमको 1.25 को डिवाइड करने हैं एंड 1.88 को डिवाइड करने हैं। सो आवर वैल्यू इज यहाँ पे हमने डिवाइड किया सो हमारा रेशियो आया यहाँ पे कट ऑफ हो गया। इट मींस टू से आवर वैल्यू इज 1:1.5। ओके, सो अब क्या करना है अपन को यहाँ पे मींस अब अपन क्या है इस रेशियोज को इस फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, ठीक है। सो हमको एक पर्टिकुलर रेशियो चाहिए। अपन क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर हमने मल्टीप्लाई किया 2 से सो आवर वैल्यू इज 2:3। ओके, इट मींस टू से यहाँ पे क्या है हमको 2:3 के फॉर्म पे क्या है हमारा जो है मोल वैल्यूज प्रोवाइड हो गया। ओके, देन 4 पॉइंट इज राइट एम्पिरिकल फॉर्मूला यूजिंग द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। इट मींस टू से यूजिंग सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स को अपन यूज करके क्या है कि एम्पिरिकल फॉर्मूलाज
पार्ट्स हो गए. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज राइट मोलर फॉर्मूला. ओके, सो यहाँ पे क्या है, अब हमको क्या है उनके मोलर फॉर्मूलाज राइट करने हैं. ओके, सो अकॉर्डिंग टू मोलर फॉर्मूला देयर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इज क्या है, यहाँ पे हमारी वैल्यू 2 एंड Fe है. ठीक है, Fe है, इट मींस टू से क्या है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एम्पिरिकल मास हमको क्या है यहाँ पे मोलर फॉर्मूलाज पुट करने हैं. सो फर्स्ट अपन क्या करेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूलाज मास निकालेंगे. सो अवर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास वैल्यू इज Fe2O3. सो अपन ने यहाँ पे Fe की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मींस Fe का मोलर मास जो होता है वो क्या है 55.8, जो अपन ने पहले भी मेंशन किया हुआ है. एंड ये कितने अमाउंट्स में प्रेजेंट है, 2 अमाउंट्स में, इसको मल्टीप्लाई हो गए. एंड प्लस 3 अमाउंट्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट है एंड देयर मॉलिक्यूलर मास इज 16. सो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो गए. देन देयर आंसर इज 159.6 ग्राम. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन यहाँ पे क्या है हमको एम्पिरिकल फॉर्मूला मास मिला. एम्पिरिकल फॉर्मूला मास मींस क्या है, हमको एम्पिरिकल फॉर्मूला के थ्रू क्या है हमको एम्पिरिकल फॉर्मूला मास प्रोवाइड हुए. एंड अवर नेक्स्ट इज हमको क्या आइडेंटिफाई करना है, देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ओके, सो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले हमको निकालना पड़ेगा उसका मोलर मास. सो मोलर मास के लिए आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस में क्या है मोलर मास प्रोवाइड होंगे. सो इनके मोलर मास क्या है यहाँ पे 79.8 ग्राम. ओके, सो अकॉर्डिंग टू मोलर मास n इज इक्वल्स टू अपन रिप्रेजेंट करते हैं n से, इज इक्वल मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास. सो एम्पिरिकल मास हमारा क्या है यहाँ पे 159.6 ग्राम. ओके, एंड अब मोलर मास इज 79.8 ग्राम. सो कैन पुट देयर वैल्यू. सो 79.8 ग्राम एंड अपॉन 159.6 ग्राम्स हमने वैल्यूज पुट कर दिए. देन आवर आंसर इज 2. ओके, सो यहाँ पे क्या है हमारा आंसर जो हुआ वो क्या है यहाँ पे 2. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन अपन को निकालना है अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. सो आवर एम्पिरिकल फॉर्मूला इज Fe2O3. सो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सो यहाँ पे हमको वैल्यू प्रोवाइड हुई है 2. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू 2 यहाँ पे क्या करेंगे हम इस एम्पिरिकल फॉर्मूलाज को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से. सो यहाँ पे हमको मिल जाएगा हमारा क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. सो यहाँ पे हमने क्या है इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया. Fe2 मल्टीप्लाई 2 इट मींस टू से Fe4 एंड O3 मल्टीप्लाई 2 इट मींस टू से O6. सो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन यहाँ पे हमने क्या किया डिटरमाइनिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर formula. Okay, so according to this 5 steps you can solve every question determining empirical formula and molecular formula. Now we will discuss our next topic is the reaction in a solution. So you have already known about solution. Solution it means to say mixtures form. It means to say solutes and solvents के mixtures को अपन बोलते हैं solution. Solutions are divided in a 2 parts. First is a concentrated solution. Second is a dilute solution. So according to concentrated solutions वहाँ पे क्या होंगी सॉल्यूट्स के पार्टिकल्स जो है वो उनकी वैल्यूज जो है वो मोर देन होंगी एज कंपेयर टू सॉल्वेंट. सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. इफ सॉल्वेंट्स की जब अमाउंट्स क्या है मोर देन होंगी as compared to solute, so that condition is called a dilute solution. So according to this compositions can be described by expressing their concentration. Okay, it means to say हमको क्या करना है उनके concentrations को express करना है. So we will study about their 4 ways. Okay, first is a mass percentage, second is a mole fractions, third is a molarity and fourth is a molality. So our first is a mass percentage. So according to mass percentage is one way of representing the concentration of elements in compounds or components in a mixtured form. Okay, so according to their formula mass percentage is equals mass of solutes upon mass of solution multiply 100. Okay, so with the help of this formula we can identify our mass percentage values. Okay, so our first example is a
A solution is prepared by adding 2 gram of a substance A to 18 gram of water. Calculate the mass percentage of the solution. Okay, it means to say हमारे पास में क्या है, A solutions prepared हैं जिसमें क्या है 2 ग्राम्स जो है वो हमारे सॉल्यूट्स हैं एंड सॉल्वेंट्स जो है वो 18 ग्राम्स हैं. सो वी पुट अवर फॉर्मूला. So our formula is mass percentage of A is equals mass of A upon mass of solution multiply 100. So we can put our value is 2 gram, it means to say mass of A, and upon 2 gram of A, it means to say mass of solutes plus 18 gram of water, it means to say solvents, it means to say ये हुए हमारे क्या टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन. सो मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशंस मल्टीप्लाई 100. सो आवर आंसर इज 2 grams plus 18 grams. So in this condition our value is 20 gram. So 2 gram upon 20 gram multiply 100. So our answer is 10%. So हमारा मास परसेंटेज निकला यहाँ पे 10%. Okay. Now we will discuss our next point is the mole fraction. Okay, so according to mole fraction, ratio of number of mole are particular components of the total number of mole of solution. It means to say mole fractions of A is equals number of moles A upon numbers of moles of solution. It means to say फर्स्ट अपन क्या है का मोल फ्रैक्शंस निकालेंगे, देन फिर अपन निकालेंगे बी का मोल फ्रैक्शन. इट मीन्स टू से पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट मोल फ्रैक्शंस जो है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो अवर अकॉर्डिंग टू ए मोल फ्रैक्शंस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन. ओके, इट मीन्स टू से एन ए अपॉन Na plus Nb. Okay, and our next mole fractions of B is equals numbers of mole of B upon numbers of mole of solution. It means to say Na upon Na plus Nb. So according to this formula you can identify, you can solve every questions related your mole fractions. Now we will discuss our next point is the molarity. So according to molarity defined as numbers of mole of solutes dissolve in 1 liters of solution. It means to say molarities को अपन denotes करते हैं कैपिटल M से, and molarities जो होती है वो क्या है per units volumes of the solution. And let's see their example is what is the molarity of HCl in 28 gram HCl is dissolved in 500 ml of solution. So according to this condition our HCl mass is 28 ग्राम. ओके, इट मीन्स टू से सॉल्यूट्स जो है वो 28 ग्राम्स में प्रेजेंट्स है HCl एंड देयर मोलर मास इज HCl का मोलर मास जो होगा वो क्या होगा H, इट मीन्स टू से 1 एंड Cl इट मीन्स टू से क्लोरीन का जो होता है मोलर मास वो होता है हमारा 35. सो टोटल मोलर मास इज 36. ओके, सो इन दिस कंडीशन आवर वॉल्यूम, सो अकॉर्डिंग टू देयर वॉल्यूम्स 500 ml, यहाँ पे क्या है मिलीलीटर्स के फॉर्म पे है. सो अपन क्या है उसको लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड्स करेंगे सिंपली 1000 से. ओके, सो आवर वैल्यू इज 0.500. ओके, सो इन दिस कंडीशन वी कैन पुट आवर फॉर्मूला. सो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन लीटर. सो मास इट मीन्स टू से 28 ग्राम एंड मोलर मास इट मीन्स टू से आपने निकाला है अभी पे 36 मोल्स एंड अवर लीटर वैल्यू इज क्या है यहाँ पे जो सॉल्यूशन है टोटल अमाउंट्स ऑफ लीटर्स में कितने हैं हमारे 0.500 लीटर्स. ओके, सो अवर आंसर इज 1.5 molarity. Okay, so in this condition we can solve our molarity questions. Now we will discuss our last point is a molality. So molality is defined as the numbers of mole of solute per kilograms of the solvent and is expressed small m. Okay, so don't be confused molarity and molality. Now, according to molarity, number of mole of solute
इन अ 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है, मीन्स क्या है यहाँ पे सॉल्यूट जो है वो 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व है, एंड दे इसे अपन क्या बोलेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ओके, एंड अकॉर्डिंग टू मोलैलिटी लिक्विड सॉल्वेंट्स के 1 kg में जितना मोल होगा वो होगा क्या आपका मोलैलिटी, ओके। सो इन दिस कंडीशन पर यूनिट ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, ये होगा हमारा क्या मोलैलिटी, ओके। नाउ formula is a molality is equals to mole of solutes upon mass of solvent in a kg condition, okay. So let's see their example is a calculate molality of 2.5 gram of ethanoic acids in 75 gram of benzene. So our first स्टेप इज अपन को आइडेंटिफाई करने हैं देयर मोलर मास। सो अकॉर्डिंग टू एथेनोइक एसिड्स यहाँ पे कार्बन्स 2 अमाउंट्स में प्रेजेंट्स हैं, हाइड्रोजन 4 अमाउंट्स में प्रेजेंट है, एंड ऑक्सीजन जो है वो 2 अमाउंट्स में प्रेजेंट्स है। सो वी पुट अवर वैल्यू, सो कार्बन्स का आपको पता है जो मास होते हैं वो है 12, सो हमारा हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 2 प्लस हाइड्रोजन की मास होती है 1, इट मीन्स टू से 1 मल्टीप्लाई 4 नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन्स प्रेजेंट्स है, एंड अवर नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन का मास होता है 16 एंड ये कितने अमाउंट्स में प्रेजेंट्स है 2, सो मल्टीप्लाई 2, सो अवर वैल्यू टोटल वैल्यू इज 60 ग्राम मोल, ओके। सो यहाँ पे हमारा मोलर मास क्लियर हो गया। देन अब क्या है मोल ऑफ हमको निकालने हैं एथेनोइक एसिड्स। सो मोल ऑफ एथेनोइक एसिड्स इज इक्वल्स होगा हमारा क्या नंबर्स ऑफ मोलैरिटी, इट मीन्स टू से यहाँ पे क्या है मोलैलिटी जो है वो हमारी क्या है 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड्स प्रेजेंट्स है, ओके, इट मीन्स टू से एथेनोइक एसिड्स का ही निकालना है। सो हमारे पास भी क्या है 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड्स हैं, अपॉन होगा अवर मोलर मास। सो टोटल मोलर मास जो है एथेनोइक एसिड्स का कितना है 60 ग्राम मोल। सो यहाँ पे इनके आंसर होंगे 0.0417 मोल्स, ओके। नाउ मास ऑफ बेंजीन को केजी कंडीशंस में करनी है। सो यहाँ पे हमारे पास 75 ग्राम फॉर्म पे प्रेजेंट्स हैं। सो हमने क्या किया 1000 ग्राम्स में डिवाइड्स किए। सो अवर वैल्यू इज 25 ग्राम अपॉन 1000 ग्राम kg, ओके। सो इन दिस कंडीशन अवर मोलैलिटी, अभी अपन को क्या कर रहे हैं अब टोटल मोलैलिटी वैल्यूज निकालनी है। सो और मोलैलिटी ऑफ एथेनोइक एसिड्स इज इक्वल्स हो जाएगा मोल ऑफ एथेनोइक एसिड्स अपॉन kg ऑफ बेंजीन, इट मीन्स टू से जो मास ऑफ सॉल्वेंट्स होंगे वो इन अ kg कंडीशंस में होंगे। सो लेट्स पुट अवर नंबर्स इज 0.0417 मोल्स हुए जो हमारे क्या थे मोल्स ऑफ एथेनोइक एसिड्स, एंड upon moles of ethanoic acids and multiply thousands gram kg upon 75 gram, okay. So our total value is 0.556 mole kilograms. So according to this condition we can solve every questions related our molality, it means to say molality is equals moles of solutes upon mass of solvent in kg condition, per units grams of the solvents is equals होता है हमारा molality. I hope clear all of you in this topic. Thank you.